Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Now tell me what we discussed in last lecture. सर लाप्लास Laplace. अरे सॉरी सर वो सेकंड डेरिवेटिव वाला था ना वो। Second derivative वाला. मतलब पोजीशन वेक्टर पे बात Yes. टेंजेंट वो सब। Okay. ऐसा कुछ दूसरा कोई बोल रहा था कुछ. Anyone wants to say something? I think you forgot what we discussed in last lecture. We have started with the example of the tangent normal, है ना? वो सब हमने किया था. Then we go for the gradient. Yes or no? Yes, sir. And discuss some examples of gradient. Am I right, everybody? Yes. Okay, so in today's lecture we continue with that, and then we go for the second important application of the gradient, or second important point of the vector differential calculus, that is the directional derivative. Okay, directional derivative is always defined with the help of the gradient. So it is one of the most application, one of the best application of the gradient. Okay, so we continue with that. So you can see on your screen, is it visible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये सारे एग्जाम्पल हमने किए थे, वो मैंने यहाँ रिवाइज करवाने के लिए लिखा हुआ है. देखो, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट. ओके, यही यहाँ तक किया था ना ऐसा, एवरीबडी? Yes, sir. ओके, आई थिंक वी रीच अप टू हियर. और मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था. किया आपने होमवर्क? एवरीबडी होमवर्क किया है या नहीं किया है? देखो, होमवर्क में नहीं दिया था, आई ऑलरेडी डन इट. मैंने आपको करवा दिया था. यहाँ पे देखो, लास्ट एग्जांपल ये था, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एट पॉइंट 1 0 माइनस 1. दैट इज अवर लास्ट एग्जांपल. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी? Is it okay? Yes, sir. Okay. Now we continue with the next example. What is the next example? If a bar is equal to 2x square I minus 3yzj plus xz square k, and phi is equal to 2z square minus x cube into y, then find a bar cross del phi. So how we can find this? Anybody have any idea? हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, या फिर कैसे इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं? हाउ वी शुड सॉल्व दिस एग्जाम्पल? टेल मी. सोचो तो सही, नहीं सोचेंगे तो कैसे दिमाग चलेगा? बताओ, एनीवन? जो भी आपको लगे वो बताओ. चलो, ऐसा नहीं मुझे परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए. गैस वर्क तो करो, नहीं तो फिर आपका अनयूज्ड ब्रेन रह जाएगा, जैसे वो 3 इडियट्स में बताते हैं ना, ऐसे. चलो, व्हाट इज माय स्टेटमेंट? इफ ए बार इज इक्वल टू a bar is equal to 2x square I cap minus 3yz j cap plus xz square k cap, and phi is equal to 2z square minus x cube y, then find a bar cross del phi at point 1 1 minus 1. So this is my
statement of the example. Now tell me what should I do to solve this example. क्या मेरा स्टेप 1 होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? Student, are you there? सर पहले पहले Yes, बोलो। कोई एक बोलो। हाँ, वेक्टर फाइंड करेंगे पहले। क्या फाइंड करें? यूनिट वेक्टर ऑफ del phi sir. No, not a unit vector. We only need del phi. Okay, del phi. That means gradient of phi. We need only gradient of phi. So first we find out the gradient of phi. So I start with this. Phi is equal to 2z square minus x cube y. You can also say that this is your phi of x, y, z. ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? Yes or no? Yes sir. Okay, now tell me the definition of del phi. चलो del phi की definition बताओ. What is the Sir, definition? Yes. del phi by del x I k plus del phi by del y j k plus del phi by del z k cap. Very good. Okay, del phi by del z k cap. So tell me the differentiation of phi with respect to x. क्या होगा? Sir minus 3x square y. Minus 3x square y. Very good. Plus del phi by del y. कोई दूसरा बताओ चलो. मैं फिर नाम बोलूँगा सबका. पलक भावसार. Yes, sir. Okay. What is the differentiation of phi with respect to y? 3z j cap. No. Minus 3z. No. Why is minus 3? Because 3 minus 3yz. Oh, sorry. मैंने वो ये देख लिया. Okay, no problem. Minus Yes, x cube. X cube. X cube. Very good. J cap. Yes, very good. Now del phi by del z. Next, who is next? Karthik Dalwadi. Karthik, are you there? Karthik. Okay. Darshit. जल्दी करो, don't waste my time and also your time. Okay, anyone? Any volunteer? Del phi by 4z. yes. 4z k cap. 4z into k cap. Okay, so this is my gradient. अब ये gradient है, तो अब मैं उसका क्या करूँगा? del phi into a बार करना है मुझे. तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें पॉइंट सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ. देन माई क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इजी. सो del phi at 1 1 minus 1. So what should be my answer? So minus 3 into 1 into 1. So minus 3i minus x cube. X cube means क्या हो जाएगा? 1. So j cap plus 4 into z, that means minus 4 हो जाएगा. Okay, minus 4 into k cap. So everybody understand this one? Yes. Okay. Now I have the a bar. So here a bar is equal to 2x square I minus 3yzj plus xz square k. Now again I substitute the point 1 minus 1 in a bar. So what should be my answer? What should be my vector? So 2y, okay, minus 3 into 1 into minus 1, so plus 3j plus 1 into minus 1 square, that means 1 into k. So 1 into k, that means kk. Everybody understand up to here? सर पहले यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना रहेगा. कौन सा यूनिट वेक्टर? ये ए का. ए का कहाँ उन्होंने यूनिट वेक्टर बोला है? ए बार है ना, बार है, कैप नहीं है.
You can see in your statement. देखो यहाँ पे बार है, not they write a cap. Okay. Yes. A cap cross del phi देते, then you have to find out the unit vector. But here same vector is here, a bar a bar. Okay, understand? Yes, sir. Isha, got it? Yes, sir. Okay. Okay, then next we want to find a bar cross del phi. That means अब कौन से पॉइंट के लिए था 1 1 -1, हमने दोनों में ये पॉइंट रख दिया, इसलिए वी कैन राइट इन दिस वे. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट? एनीवन रिमेंबर? डिटर्मिनेंट होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स, किया था ना हमने. Yes. सो आई जे के, यहाँ पे फर्स्ट ए बार है तो ए बार का वेक्टर यहाँ पे आएगा 2 3 1. डेल फाई एट 1 1 -1 मीन्स -3 -1 -4. ओके, चलो मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी. इज इट क्लियर? सबको यही मिल रहा है? स्टूडेंट, इज इट ओके? Yes, sir. Okay, so what we require here, we want to find the a bar cross del phi at this point, so we get it. So this is our final answer of this example. So any question, any doubt in this example? Anybody? Student, any question, any doubt? No, sir. What about others? Please. No? No, sir, no doubt. Okay. No, sir. Then we go for the next example, and the next example is very tricky. Evaluate del e raised to r square, where r square is equal to x square plus y square plus z square. So we want to find here, evaluate del e raised to r square, and they given r square, so where r square is equal to x square plus y square plus z square. Okay, so how we can solve this, how we can evaluate this? तो बताइए मुझे. कैसे करेंगे? देखो, आप इंटरेक्ट करेंगे तभी आपको मजा आएगा, है ना, और नया नया कुछ जानने को मिलेगा, आपको भी और मुझको भी, है ना. So think about it. But how we can deal with this example? That is the first question. How we can start Sir? this? Yes. सर मीन्स क्या हो जाएगा? e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा. Very good. Very good. So we start with that. So here phi of x, y, z में consider कर रहा हूँ e raised to r square, and if you substitute the value of e raised to r square, then you will get x square, e raised to x square plus y square plus z square. Everybody understand this step? Yes, sir. Okay, now we want to find the del of e raised to r square, that means del phi. Del phi means del of e raised to r square, and that is the del of e raised to x square plus y square plus z square. So if you replace here, or if you substitute the formula for that, then you have del phi by del x of this one, e raised to x square plus y square plus z square into I cap plus del by del y of
e raised to x square plus y square plus z square into j cap, okay, plus del by del z of e raised to x square plus y square plus z square into k cap. Yes or no, everybody? Yes, sir. Okay. Now tell me the differentiation of e raised to x square plus y square plus z square with respect to x. What is that? Sir, e raised to x square plus e raised to y square मतलब plus y square plus z square in bracket 2h I cap plus 2y j cap plus 2z t cap. वेरी गुड। ओके, आपने तो पूरा आंसर बता दिया, लेकिन जिसको नहीं पता चला है, आई डू वन मोर स्टेप। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ई विल बी 2x इंटू ई रेज टू एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस power will be 2x. Okay, so 2x into this one into I cap plus same way यहाँ पे आप लगा सकते हो, so 2y into e raised to x square plus y square plus z square into j cap plus यहाँ पे 2z into e raised to x square plus y square plus z square into k cap. Now if you put 2 and e raised to x square plus y square plus z square outside, then you will get your answer xi plus yj plus zk. Yes or no? Everybody? Yes. Okay. Can I write Yes, in sir. this way? 2 into e raised to r square into r bar. इसको तो हम पोजीशन वेक्टर बोलते थे कि नहीं, तो मैंने उसको r bar बोल दिया, and this is also our r square, so I put here r square and 2 is as it is. So this is your required answer. So any question, any doubt in this example, anybody? अब बताओ तो सही, आपको डाउट है या क्वेश्चन है? स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. विजय, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, सबको पूछना पड़ेगा या फिर आप बोल रहे हो? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम थोड़ा डिस्कस ज़्यादा कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ आर इज टू एन। चलो इसको कैसे करेंगे, हाउ वी स्टार्ट दिस एग्जाम्पल? ग्रेड ऑफ आर इज टू एन। चलो बताओ इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम, हाउ वी कैन स्टार्ट दिस एग्जाम्पल? किसको सर पहले तो Yes. r लिखेंगे, r ऑफ x y z, मतलब r स्क्वायर का r में कन्वर्ट करेंगे। Yes, very उसके good. बाद उसका ग्रेडियंट करते nth डिग्री का कर देंगे। ओके, थोड़ा ट्विस्ट करें तो नहीं चलेगा, पहले हमारे पास आर आ जाएगा, देन वी टेक आर रेज टू एन पावर, ओके, देन वी अप्लाई द ग्रेडियंट, इज इट ओके? सर पहले ग्रेडियंट करेंगे तो इजी नहीं रहेगा? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जब तक आपका प्रॉपर फाई नहीं मिलेगा, देन अप टू दैट यू कैन नॉट फाइंड योर ग्रेडियंट, यस सर, यस सर। क्योंकि बोथ द वेक्टर आर डिफरेंट। इफ यू अप्लाई ऑन आर and if you apply on r raised to n, both have the different meaning. Okay, Nischal? Yes sir. Okay, so we start with the r. So here we have r square is equal to x square plus y square plus z square. Now first we find out r. So what is my r? कोई बताएगा मुझे r क्या है निश्चल के अलावा? क्या होगा r मेरा?
हेता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड, उसको मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा हेता? यस सर। R is equal to x square plus y square plus z square raised to 1 by 2. Now R raised to n. चलो अब किसको पूछूं मैं? हेता का तो नंबर आ गया। दृष्टि, यस दृष्टि। Yes, sir. Yes. What is the value of R raised to n? बताओ। Raised to n. Yes. X square plus y square plus z square raised to n. N N नहीं. by 2. Yes. N by 2. Very good. You are right. N by 2. Okay. So this is your R raised to n. Okay, everybody. Yes, sir. Now gradient of R raised to n जो बोला है वही लिखेंगे. Then we use the symbol. So the gradient of R raised to n is equal to gradient of R raised to n is equal to. अब मुझे क्या करना है? तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर रेज टू एन आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ आर रेज टू एन जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ आर रेज टू एन के कैप. यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ आई स्टार्ट विथ ईयर. ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे आर रेज टू एन की जगह पे मैं ये रिप्लेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू एन बाई 2 इंटू आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू एन बाई 2 इंटू जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर raised to n by 2 into k. Now tell me, what is the differentiation of this term? Sir, n by 2 into x square plus y square plus z square whole raised to n by 2 minus 1 Why? into bracket 2h I थे plus 2y थे plus 2z थे. ओके, चल आपने तो पूरा आंसर बता दिया, लेकिन जिसको नहीं पता चला है उनके लिए मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन? सो n by 2 पावर आगे आ जाएगा x square plus y square plus z square. We deal with differentiation, so the power will be decreased. So n by 2 minus 1 into the differentiation of bracket, it will be the 2x. Okay, I can plus same will be applicable for y, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा. So n by 2 x square plus y square plus z square raised to n by 2 minus 1 into 2y into j plus n by 2 x square plus y square plus z square raised to n by 2 minus 1 into 2z into k. Any problem up to here, anybody? Any problem, student? No, sir. Okay. Now, if you see, then 2 will be cancelled out in each term. Okay. Now, what is the common factor here? N into x square plus y square plus z square raised to n by 2 minus 1. Yes or no? This is the common factor. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if you take this common, then what is the remaining term? So here we have the x into y. X, Y, Z. Yes, yj plus zk. So can I write in the r form? So this is your n into, अब यहाँ पे देखो इसका LCM लेंगे ना तो आपको r मिल जाएगा. So this is your r. देखो क्या था? r square x square plus y square plus z square. So this is your r square raised to यहाँ पे n minus 2 by 2 into this is your r bar. Everybody understand? Yes.
बिग कॉस करके आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. So here n into 2 will be cancelled out. Okay, so we have r is to n minus 2 into r bar. This is your perfect answer. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? Student, any question, any doubt? No, sir. Okay, then we go for the next topic and that is our directional derivative. Okay, so हमने अभी क्या किया आपको पता है कि हमने ग्रेडियंट फाइंड किया. ओके, ग्रेडियंट से हमको दो चीज़ मिल सकता है. नंबर वन, वी कैन फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस. यस और नो? Yes, sir. है ना. एंड सेकंड थिंग इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शनल derivative. Okay, directional derivative. So this is the wonderful application of the gradient. So directional derivative means the directional derivative of a surface phi in the direction b bar is defined as, so if you want to define the directional derivative you need first direction, means कौन से direction में आपको find करना है. So you have the surface and direction, then you can find the directional derivative, and the definition of the directional derivative is del phi into b cap, and b cap will be our unit normal, so you can write in this way also. So del phi into b bar divided by modulus of b bar is our directional derivative. Understand? Yes, sir. What about others? Do you understand, student? Yes, sir. नो सर. जनिल, क्या हुआ? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना. ओके, चलो देखो यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है कि आपके पास ग्रेडियंट होना चाहिए एंड उसके साथ डायरेक्शन, मीन्स उसके नेम देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो यू नीड टू थिंग्स. नंबर वन इज द सरफेस, दैट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट. नंबर टू इज डायरेक्शन. Okay, so if you have both the things then you have to find directional derivative. Up to here clear? जैनिल, ये पता चल गया कि कब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं? जैनिल, यस सर. ओके, हाँ अब देखो जैनिल, अब उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास सरफेस है उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है. ओके, इनटू बी बार डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी बार. दैट मीन्स जो डायरेक्शन दिया है उसका नॉर्मल वेक्टर, मीन्स उसका यूनिट वेक्टर बना के उसको प्रोडक्ट ले लें. दैट मीन्स डेल फाई इंटू बी बार डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी बार is our directional derivative. Now is it clear? Yes. Yes, sir. Okay, so next example. देख उसके एग्जाम्पल कैसे करना है. सो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ सरफेस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट पॉइंट 1 माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे देखो ये सरफेस दिया है एंड ये एक पॉइंट दिया है. तो अब इतने डेटा से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज देयर इज नो एनी डायरेक्शन. ओके, यहाँ तक है कोई डायरेक्शन यहाँ आपको दिया है? नो, है ना? यहाँ तक नहीं है ना स्टूडेंट डायरेक्शन? स्टूडेंट ओके के जैनी ने तो लिखा. हाँ रामजन खान पठान, आप बोल रहे थे कुछ? नहीं है ना? Yes. हाँ. ओके, देखो अब आपको 1 2 3 करके 3 डायरेक्शन दिया है. मीन्स यही सरफेस का यही पॉइंट पे आपको 3 डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है. नंबर वन, अलोंग द डायरेक्शन दिस वन टूवर्ड्स द पॉइंट 2 माइनस 1 1. मीन्स इससे आपको पहले डायरेक्शन निकालना पड़ेगा 2 पॉइंट से.
एंड उसके बाद along the डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, दिस वन मीन्स इसके नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो आपको कंसिडर करके इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो स्टेटमेंट इज क्लियर एवरीबॉडी? Yes. ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड आउट फॉर द नंबर 1. अब इसको फाइंड करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर योर फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल फाई इनटू बी कैप. सो व्हाट वी नीड फर्स्ट, हमको क्या चाहिए सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए? थिंक अबाउट इट, क्या चाहिए? तो सबसे पहले मुझे तो फाई चाहिए. यस और नो? Yes, sir. देन सेकंड नंबर पे मैं फाइंड करूंगा ग्रेडियंट. यस और नो? Yes, sir. Yes. ये मुझे जनरल मिलेगा, तो मुझे कोई पॉइंट पे बोला है तो पॉइंट पे मैं फाइंड कर दूंगा. ओके, दैट इज योर माय स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4 में जो भी डायरेक्शन दिया है उसका बी कैप फाइंड करूंगा. ओके, एंड स्टेप नंबर 5 इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? दिस इज द 5 स्टेप एग्जांपल. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ वी गो फॉर द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो पहले मैंने सरफेस को फाई बोल दिया. गिवन सरफेस इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब. सो देखो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब. दैट इज अवर surface. Now I go for the gradient of that surface. So del phi is equal to del phi by del xi plus del phi by del yj plus del phi by del z k. So if you replace phi here, so we get xy square plus z square, differentiation of xy square plus yz cube with respect to x into y plus xy square plus yz cube का differentiation with respect to y into j plus del by del z of xy square plus yz cube into k. So what is the differentiation of this term with respect to x? y square. Yes or no? क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा because there is no x in this term. So here we have y square. So y square into y plus here 2xy plus z cube into j plus 3yz square into k. So any problem up to here? No. ओके, तो मैंने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर दिया. नाउ आई गो फॉर द स्टेप नंबर 3. व्हाट इज स्टेप नंबर 3? डेल फाई एट गिवन पॉइंट. आवर गिवन पॉइंट इज 1 minus 1 1. सो आई find gradient at 1 minus 1 1. So gradient at 1 minus 1 1 will be x is equal to 1, y is equal to minus 1 and z is equal to 1. आपको इसमें रिप्लेस करना है. सो x y स्क्वायर मीन्स माइनस 1 स्क्वायर, सो 1 हो गया. सो i प्लस 2xy की जगह पे आपको रखना है 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1. सो माइनस 2 प्लस जेड क्यूब मीन्स हो जाएगा मेरा 1. सो माइनस 2 प्लस 1 इंटू जे माइनस 3k. ओके, क्योंकि यहाँ पे y का माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस. सो माइनस 3k. सो यहाँ पे आपको मिलेगा i माइनस जे माइनस 3k. सो एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? No, sir. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद है किसी को? नेक्स्ट स्टेप इज बी कैप. अब बी कैप के लिए मुझे सबसे पहले तो बी बार चाहिए. सो नंबर 1 के लिए बी बार क्या है मेरा? व्हाट इज माय बी बार फॉर 1? सो कैन आई से दिस इज माय बी बार? यस और नो? स्टूडेंट रिप्लाई मी. Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो उसी से स्टार्ट करेंगे. तो मैंने इसको केस 1 2 3 ऐसे बोला गया है. देखो यहाँ पे 1 along द डायरेक्शन i प्लस 2j प्लस 2. सो मैंने उसको बी बार बोल दिया. सो बी बार इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2. इसमें आपको डायरेक्शन सीधा दे दिया है इसलिए ईजी हो जाएगा ये एग्जाम्पल. सो बी कैप इज इक्वल टू बी बार डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ बी बार. सो i प्लस 2j प्लस 2k, उसका मॉड्यूलस आप फाइंड करेंगे तो 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4. So I plus 2j plus 2k divided by root 9 and root 9 will be your 3. So I plus 2j plus 2k divided by 3. Now therefore the directional derivative in the direction of b bar is
अब ये तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की फॉर्मूला है, सो डेल फाई इंटू बी कैप करेंगे। सो डेल फाई हमारा कितना था, आई माइनस जे माइनस 3k, वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट विथ बी कैप मीन्स आई प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई 3। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, आता है ना सबको स्टूडेंट? यस सर। है ना? तो कैसे करेंगे मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या था हमारा, डेल फाई इंटू डी बी कैप इज इक्वल टू आपके पास है आई माइनस जे माइनस 3k इंटू आई कैप प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई 3। ओके, यही है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स क्या करना है, देखना है यहाँ पे। सबसे पहले 1/3 को कॉमन ले लो, तो 1/3 कॉमन। अब आई इंटू आई कितना होता है, आई इंटू आई 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 इंटू आई आई होगा पक्का। यस सर। 1 सर। 1 हो जाता है बेटा, 100 इंटू 100, तो दिस विल बी योर 1 प्लस 0 प्लस 0 1 होता है। ओके, सो दिस इज योर 1। ओके, नेक्स्ट आई इंटू जे करेंगे या फिर आई इंटू के करेंगे तो दोनों ही दोनों ज़ीरो आने वाले हैं, तो उसको दोनों ही दोनों का ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप में माइनस, देखो जे इंटू आई तो वो भी ज़ीरो, जे इंटू 2j दैट मीन्स माइनस 2, जे इंटू जे मीन्स 1, और जे इंटू के वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। अब माइनस 3 के इंटू आई वो भी ज़ीरो, माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6, 0 माइनस 6 इंटू के दैट मीन्स 1, बिकॉज आप या मैंने लिखा ही है तो पर भी बोल देता हूँ, आई इंटू आई 1 is equal to j into j is equal to k into k। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई दूसरा अगर आप लेते हो कॉम्बिनेशन में i इंटू जे कैप या फिर i इंटू के कैप, ऐसे सभी हाँ वो सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो 1/3 यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस 21 माइनस 6। सो व्हाट वी गेट हियर, सॉरी 2 21 नहीं 2 है ना, यस 2, क्योंकि 1 तो उसका था। सो 1 माइनस 2 माइनस 6 कितना बचेगा, -7/3। सो डू यू अंडरस्टैंड अप टू हियर एवरीबडी? यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो वही का वही आया। ओके, नाउ वी गो फॉर द केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में हमको स्टेटमेंट में बोला गया है टूवर्ड्स द पॉइंट 2 माइनस 1 1, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। देखो मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है 1 माइनस 1, अब मेरी जो डायरेक्शन है ना वो टूवर्ड्स द पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरा जो नया आया वो 2 माइनस 1 1 है। अब मेरी डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा, कोई बोलेगा मुझे? सर पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए। यस, तो यहाँ पे P बोलता हूँ तो ये Q है, तो मेरा पी क्यू दैट इज माई बी बार। यस और नो एवरीबडी? अच्छा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बार माइनस वेक्टर P बार। सो Q बार माइनस P बार करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 माइनस 1 मेरा 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो मेरी डायरेक्शन कौन सी बची, सिर्फ आई कैप बचेगा एवरीबडी, यस सर। है ना, क्योंकि 1 इंटू आई, सो बाकी के दोनों तो ज़ीरो। तो अब ये डायरेक्शन के लिए मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो यहाँ पे वही किया होगा केस नंबर 2, देखो है ना, वी फाइंड द डायरेक्शन बी बार अलोंग द लाइन, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P1 माइनस 1 1 एंड Q2 माइनस 1 1, तो बी बार इज इक्वल टू Q माइनस P बार, सो दिस विल बी आई, जैसे मैंने बताया। सो बी कैप फाइंड करेंगे तो पर भी आई रहेगा, because this is already unit vector, yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. So the directional derivative in the direction b bar is del phi into b cap is equal to मेरा del phi था I minus j minus 3k, b cap है मेरा I. सो ये दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो I इंटू आई वाला ही सिर्फ जिंदा बचेगा, बाकी सारे जीरो. ओके, सो 1 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 ही मिलेगा. ओके एवरीबडी अंडरस्टैंड? Sir. यस यस बेटा, यस बोलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any problem in case 2? Anybody? नो सर. Okay. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उससे भी थोड़ा ट्रिकी. क्या बोला है देखो, along the direction normal to the surface मीन्स आपको क्या करना है, ये सरफेस जो है ना उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन कंसिडर करना है एज बी बार, एंड उसके लिए फिर आपको फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस. Yes, sir. ओके, तो अब इसके नॉर्मल फाइंड कैसे करते हैं, कोई मुझे सिखाएगा? सर पोजीशन वेक्टर था डेरिवेटिव करने का. नो नो, सरफेस में ऐसा नहीं होता है बेटा. वो कब करते थे हम? आर बार जब दिया होता है तब. हियर वी हैव नो एनी आर बार, वी हैव द सरफेस. गॉट इट? पता चला मैंने क्यों मना किया आपको? क्योंकि वहाँ पे आर बार था तो डी स्क्वायर आर बार बाई डी टी स्क्वायर जो था उसको हम नॉर्मल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर बार ही नहीं है, तो हाउ वी कैन फाइंड इट? ओके, यहाँ तो हमको सरफेस दिया है पूरा, वहाँ तो पोजीशन वेक्टर था. बट इट निश्चल, पता चला? Yes, sir. ओके. हाँ, अब बताओ मुझे इसका नॉर्मल कैसे फाइंड किया जाता है? नॉर्मल टू दी सरफेस कैसे मिलता है? No idea, sir. आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, इसलिए रीडिंग चालू रखो, नहीं तो फिर बहुत गायब हो जाएंगे आप. देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि ग्रेडियंट की 2 एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करने के लिए एंड दूसरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव. बोला था कि नहीं? Yes, sir. तो कभी भी मुझे नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस, नथिंग एल्स. ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मुझे सिर्फ इसको, अगर मैं फाई मैंने इसको बोल दिया, इसे फाई नहीं बोल पाऊंगा तो मैं इसको एफ बोल देता हूँ. सो आई वांट टू फाइंड द डेल एफ एट पॉइंट 1 2 2, दैट इज माई बी बार. एवरीबडी अंडरस्टैंड? नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो जब भी नॉर्मल टू दी सरफेस आए ना, तब दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, वी वांट टू फाइंड ग्रेडियंट, नथिंग एल्स. ओके, जब आर बार के साथ डील कर रहे हो देन इट इज ओके, निश्चय. ओके, लेकिन जब सरफेस के साथ करना है देन यू हैव टू गो विद द ग्रेडियंट ओनली. अंडरस्टैंड एवरीबडी? कैन आई गो फर्दर? Yes, Yes, sir. sir. ओके यस सर. ओके, चलो देखो, तो फिर यहाँ पे मेरा था ये सरफेस नया. ओके, एट पॉइंट 1 2 2, तो मैंने उसको एफ बोल दिया. सो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ आई गो फॉर द डेल एफ. सो डेल एफ इज इक्वल टू अगेन डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई. Sir, हाँ यस यस, sir इधर -9 लिखना तो पड़ेगा ना. हाँ यस, -9 लिखना पड़ेगा. उसका रोल नहीं है, लेकिन -9 यू हैव टू राइट डाउन -9. यस, ओके. Yes, sir. Okay, so del by del x x square plus y square plus z square minus 9 plus del by del y x square plus y square plus z square into j cap minus यहाँ पे -9 del by del z x square plus y square plus z square minus 9 into k cap. Okay,
Now if you differentiate this, then you have 2x into y plus 2y into j plus 2z into k. अब उसको बोला गया है कि ये पॉइंट के लिए, सो 1 2 2, सो डेल यहाँ पे एफ आएगा, ओके, डेल एफ एट 1 2 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आई प्लस 2 इंटू 2 जे प्लस 2 इंटू 2 के, सो 2y प्लस 4j प्लस 4k. सो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर. No, sir. यू हैव टू से दिस इज योर बी बार. जो आपकी डायरेक्शन थी वो इतना कैलकुलेशन करने के बाद मिला आपको. सो ये डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो नेक्स्ट पार्ट इज दैट, देखो बी बार इज इक्वल टू 2y प्लस 4j प्लस 4k मैंने ले लिया. नाउ बी कैप अगर हम फाइंड करेंगे इसके लिए, सो बी बार अपन मॉड्यूलस ऑफ बी बार. सो इफ यू डू ऑल दिस टाइप देन यू विल गेट i प्लस 2j प्लस 2k बाई 3. इसको समझाने की ज़रूरत है? अब तो पता चल गया है ना? सीधा ये बोलूँ तो चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now what is the definition of directional derivative? So directional derivative in the direction of b bar will be del phi into b cap. So del phi तो ऑलरेडी मैंने आगे कर दिया था. एक ही एग्जांपल में 3 एग्जांपल आपको दे दिए. तो देखो यहाँ पे डेल फाई है मेरा i माइनस जे माइनस 3k, उसी का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है. सो i माइनस जे माइनस 3k इंटू बी कैप में जो मेरा नया मिला वो i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई 3. अब ये दोनों का प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i इंटू आई वाला 1 हो जाएगा, j इंटू जे वाला 1 हो जाएगा, k इंटू के वाला 1 हो जाएगा, अदर एलिमेंट्स विल बी 0. सो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 6/3. सो इफ यू फाइंड इट देन वी विल गेट माइनस 7/3. So is there any doubt, any question in this example? ये 3 एग्जाम्पल का एक ही एग्जाम्पल है, उसमें कोई डाउट है किसी को? सर एक बार फिर से पूरा दिखा दो ना. हाँ, पूरा दिखा देता हूँ. पहले हमने क्या किया, इसलिए मैंने पहले स्टेप्स आपको सिखाया. स्टेप्स क्या करना है, फर्स्ट के लिए अगर मुझे फाइंड करना है तो आई हैव टू फॉलो दिस 5 स्टेप. नंबर 1 पहले फाई फिक्स करो, नंबर 2 डेल फाई, नंबर 3 डेल फाई एट दैट पॉइंट, नंबर 4 बी के फाइंड करो, एंड नंबर 5 स्टेप में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करो. ओके निश्चल, अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो Yes. यहाँ पे एक साथ 3 है, इसलिए ये 1 2 3 तो हर एक में कॉमन रहेगा, इसलिए मैंने वो पहले कर दिया. देखो आप, ओके. Yes, sir. अब यहाँ से मेरा वेरिएशन स्टार्ट. बी कैप मुझे फाइंड करना है, तो पहले के लिए बी मुझे दे दिया था, तो उससे मैंने बी कैप फाइंड किया, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सेम वे दूसरे में नहीं दिया था, तो पॉइंट दोनों को जॉइंट करके मुझे डायरेक्शन फाइंड करना था, कर दिया, और फिर उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव. एंड थर्ड में मुझे नॉर्मल टू द सरफेस से डायरेक्शन निकालना था, तो मैंने पहले सरफेस को नेम दे दिया, फिर उसका ग्रेडियंट फाइंड किया, और फिर उसके पर पॉइंट अप्लाई किया. देन आई फाइंड आउट माई बी बार. सो बी बार से मुझे बी कैप मिलेगा, और बी कैप से मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No doubt, sir. sir. Okay, now try for first example. Okay, I give this example in your homework. चल, इसको मैं homework दे रहा हूँ, then we do in next class. So is there any doubt, any question in today's class? Anybody? No, no, sir. No, sir. लेकिन I have one